Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel for IBF certification IT security. This is module A, unit 3, organizational security and risk management. So before that we have already covered 2 unit from module A for IT security. So now this is third one and this will be a complete lecture for unit 3. So what we are going to study in this chapter, we will study RTI Act 2005, RTI Act and Information Security Policy, Information Security in IT industry or in telecom sector, Information Security in banking, what is risk management, what is vulnerability. So now first is Right to Information Act 2005. So first of all, what is RTI Act 2005? The Right to Information Act 2005 has the main objective to empower the citizens and empower them and promote transparency, accountability in the working of government. मतलब RTI Act में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो है क्या काम हो रहा है, ठीक है, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है ये RTI एक्ट जो है वो आया था. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिलेवेंस, व्हाई वी आर डिस्कसिंग RTI एक्ट हियर. सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग. So before go into detail, first we will see कि where RTI Act is not applicable. RTI Act जो है वो कहाँ applicable नहीं है. So first one is intelligence and security organizations specified in the second schedule. तो RTI Act में जो है वो हम लोग को रिप्लाई नहीं मिलेगा यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप जो है वो डिमांड करते हो, ठीक है. एंड सेकंड क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ अ थर्ड पार्टी. तो पहला था हमारा विच टाइप ऑफ डिमांड विल नॉट बी इंटरटेन्ड इन IT एक्ट, RTI एक्ट. Okay, so in RTI Act, this kind of information, intelligence and security organizations, information related to intelligence and security organization, and second one is trade secret, intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party is exempted from disclosure under section 81D of RTI Act. Next, information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsiding in a person other than state. कॉपीराइट वाला जहाँ इशू आएगा वहाँ भी नहीं करेंगे. तो ऊपर में जो ये था ना इंटेलेक्चुअल राइट, मुझे लगता है इससे कॉपीराइट भी कवर हो जाता है. तो दीज आर दी ओनली फ्यू. मैं जो है यहाँ पे बस कुछ 2-3 ही डिस्कस किया हूँ कि RTI एक्ट में जो है वो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो इससे रिलेटेड में आंसर नहीं मिलेगा. नाउ वी विल सी दैट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी. अब दोनों जो है वो दोनों में क्या है सिमिलरिटी क्या है, या वाई वी आर डिस्कसिंग RTI एक्ट हियर. तो RTI Act do not technically comes under the purview of information system policy, but while drafting ISS policy of an organization, it needs to classify their asset which can disclose to outer world or not under RTI Act. So first of all, कि under RTI Act, just concentrate and just listen. Under RTI Act क्या होता है कि we disclose something to the outer world, ठीक है. Under RTI Act we disclose something to the outer world. और in information security policy what happens कि we secure our information. Okay, we secure our information. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो हम बचा के रखते हैं, उसमें सिक्रेसी लाते हैं,
ठीक है, सिक्योर करते हैं कि आउटर वर्ल्ड को कुछ पता ना चल जाए, कुछ ऐसा मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा रिलेटेड जिससे आपको नुकसान हो तो आप उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे। और आरटीआई एक्ट में क्या होता है कि जो भी जानकारी हमसे डिमांड किया जाता है तो वी शेयर दोज इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। ठीक है, सो नाउ अब क्या है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, in all kinds of organization except few, RTI Act is applicable. You are agree? So in any organization, okay, so in any organization while drafting ISS policy, there should be a clear lines कि what we can share under RTI Act and which kind of information we can't share or disclose under RTI Act। ठीक है, क्या होना चाहिए कि while drafting ISS policy of an organization, it needs to classify their asset which can disclose to outer world or not under RTI Act। मतलब कि RTI Act और ISS पॉलिसी में कहाँ क्या रिलीवेंस है, तो ये रिलीवेंस हुआ कि अंडर RTI Act you will have to provide share all the information which is demanded by people under RTI Act। So while drafting a policy, ISS policy, okay, information security policy of an organization, there should be a clear classification of information so that which information we can share under RTI Act and which information we can't share under RTI Act। ओके, तो ये जो है वो एक लाइन होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीसो है ना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क विथ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी to interpret judgments of different courts or to classify information in the organization। अब क्या है कि आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी भी we modify our policy time to time। ठीक है, if we receive some kind of guidelines, okay, from government, then we have to modify our policy। ठीक है, तो हम पॉलिसी को करते हैं। तो हमारा जो सीसो होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, उनका काम क्या होता है कि मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट आता है, ठीक है, कोई कोर्ट कोई जजमेंट देता है जिससे हमारा जो प्री क्लासिफिकेशन था, हमारा जो पहले का क्लासिफिकेशन था इंफॉर्मेशन का, ठीक है, तो वो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन हम दे रहे हो, आप ऐसा समझिए कि if some kind of information were shared by our organization and after certain judgment we will have to share those kind of information। ठीक है, कि मान लीजिए कोई जजमेंट आता है तो उसके बाद हो सकता है कि वैसा इन्फॉर्मेशन हम शेयर शायद नहीं करेंगे, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि मान लीजिए हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे एज पर आवर ISS पॉलिसी, और हो सकता है कि कोई जजमेंट आने के बाद हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़े। ठीक है, तो सीसो या ISO जो है आपका, ठीक है, वो क्या करता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ काम करते हैं और जो भी जजमेंट आता है उस जजमेंट को इंटरप्रेट करते हैं और अकॉर्डिंगली दे चेंज आवर पॉलिसी। ठीक है, ISS पॉलिसी। ठीक है, तो नाउ आई थिंक यू गॉट व्हाट इज why the RTI Act and ISS policy is there together। Now, information security in IT industry including software। अब क्या है कि IT इंडस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो IT सिक्योरिटी पॉलिसी हमारा जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है, ठीक है, उसको कैसे इंश्योर करेंगे। जैसे organization dealing in IT products or services like hardware manufacturing or service delivery or software design development including BPOs, KPOs
where information is stored in electronic form. IT security policy is drafted in such a way so that proper safeguard of this information is ensured, and every department will work closely with IT, IS security department और एसेट क्लासिफिकेशन। देखिए पहला तो ये है कि मान लीजिए कि जो BPO KPO टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप कस्टमर डेटा को जो है स्टोर करके रखते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, तो हमारा पॉलिसी इस तरह जो है वो ड्राफ्टेड होना चाहिए कि वो हम जो है उस डेटा को सिक्योर रख सके, ठीक है। कुछ लॉज भी हैं जहाँ पे हमें एग्जाम्पशन मिलता है, जैसे इस केस में क्या होगा कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज द कस्टोडियन ऑफ दोज डेटा ना, ठीक है। तो जब भी आप डेटा किसी और के साथ शेयर करते हो वहाँ ब्रीच होता है तो कहीं कहीं हमें एग्जाम्पशन भी मिलता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट सिक्योर दोज पब्लिक डेटा और थर्ड पार्टी डेटा। तो पहला तो ये है कि हमारा IS पॉलिसी में ये प्रोविजन होना चाहिए कि हम कैसे सिक्योर करेंगे। सेकंड क्या है कि जहाँ पे प्योर डेवलपमेंट का काम होता है, इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट while drafting IT policy things take into consideration, क्या क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा। आप लॉजिक लगा के कोड लिखते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा कुछ लॉजिक लिखते हो जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो एक तो वो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर भी आएगा, ठीक है। कोडिंग स्टैंडर्ड etc यूजेज ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, परमिशन टू एक्सेस सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड एक्सेट्रा ऑल टू बी एड्रेस्ड केयरफुली। ये जो है वो हमारा जो है वो IS पॉलिसी में या IT पॉलिसी में हमारा जो है, ठीक है, IT पॉलिसी में ये सब कंसीडर होना चाहिए। मान लीजिए आप अपनी कंपनी में देखते होंगे डेवलपमेंट के टाइम में कि पेन ड्राइव प्रोहिबिटेड था, जैसे आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर आप जो है वो कुछ लिस्टेड वेबसाइट ही खोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ भी USB या कुछ इस तरह का डिवाइस आप अपने सिस्टम में नहीं लगा पाएंगे जिससे आप कोड ट्रांसफर कर पाओ। मेल सिस्टम आपका दूसरा जो है वो ओपन नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है, आप कंपनी के मेल ही ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो इसी से बचने के लिए कि आप जो है जो भी कोड है, ठीक है, आप इसको जो है वो ट्रांसफर ना कर पाए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यदि हम IT सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वहां पर जो है वो सबसे पहले आएगा द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाता है, इसको इंश्योर किया जाता है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर का यूज करें, ठीक है, सोर्स कोड जो है वो कोई ट्रांसफर ना कर ले। दूसरा जो है वो हार्डवेयर पैटेंटिंग इज टू बी डन एंड सच इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हमारा जो है वो हार्डवेयर पैटेंटिंग भी होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसपे हम जो है वो काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में IT सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं तो हमें यही सब ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन टेलीकॉम सेक्टर। देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जो है हु इज द रेगुलेटर, तो ट्राई इज द रेगुलेटर, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई बीइंग द रेगुलेटर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री keeps an eye on how these industries maintain their records as it includes public data or third party data. IT security policy of these organizations drafted in such a way so that employee can be made accountable for information security since third party data are always been handled by the organization। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, आप नाम ले ले, जियो है, एयरटेल है, हम सबका इंफॉर्मेशन उसके पास है, ठीक है। अब वहीं से यदि डेटा ब्रीच या कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन IT सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्री, फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री there should be a provision in our IT policy so that employee can be made accountable for information security since third party data are always been handled by the organization। और ये सेंसिटिव डेटा होता है, एक बार मोबाइल का एक्सेस मिल गया, ठीक है, आपके डेटा का एक्सेस मिल जाए, आपके मोबाइल का मतलब हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है वहां पर कुछ आप मतलब ऐसा ब्रीच कुछ होता है तो इजिली मिल जाएगा, तो आपका फाइनेंशियल डेटा भी एक्सेस हो जाएगा। सब कुछ आजकल OTP पे ही होता है, ठीक है। तो IT सिक्योरिटी पॉलिसी
should have well defined procedure and guidelines including asset classification, access control measures and other security practices. सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन होना चाहिए उधर भी, ठीक है, और क्लासिफिकेशन होगा तभी जो है हम हायरार्की वाइज जो है वो राइट्स दे पाएंगे कि किसको कौन क्या देख सकता है. एक्सेस कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेज. ये हो गया आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए. अब क्या है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इन बैंकिंग सेक्टर. देखिए बैंकिंग सेक्टर में जब भी हम आईटी पॉलिसी की बात करते हैं तो 2011 में जो है ये कमेटी बना था, ठीक है, एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री जी गोपाल कृष्णा, ठीक है. द ग्रुप एग्जामिन्ड वेरियस इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ आईटी इन बैंक्स एंड मेड इट्स रिकमेंडेशन इन 9 ब्रॉड एरियाज. ये 9 ब्रॉड एरिया जो है ये क्या क्या है, यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन. दिस 9 एरियाज वाज आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईएस ऑडिट, आईटी ऑपरेशन, आईटी आउटसोर्सिंग, सर्विस ऑफ आउटसोर्सिंग, साइबर फ्रॉड, business continuity planning, customer awareness program and legal aspect. So these are the 9 broad areas which has been identified by Gopal Krishna committee. And beside all this, committee also instructed banks to properly strategize IT controls to make them more effective. Banks have been told to appoint CISO for the banks. सबसे पहले कि इस 9 एरियाज को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया while using IT for banks. And he also suggested that every organization or every bank should have one CISO, ठीक है, Chief Information Security Officer, to take up the responsibility for making and implementing policies to protect information. ये हमारा था IIT policy for banking. Second, what is HIPAA? HIPAA, HIPAA. देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि वी आर जस्ट हैविंग we are just looking into the IT security aspects in every industry. Okay, we have seen in banking industry, we have seen in software industry. Okay, so now we will see in hospital industry. अब क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, पेशेंट का इलाज होता है. अब क्या कि हमारे इंडिया में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ जो है जो हॉस्पिटल्स आर सेविंग डेटा फॉर देयर पेशेंट्स, रेगुलर पेशेंट्स, बट it was not happening, I will say 20 or 10 or 20 years ago. and अभी भी ये नहीं हो रहा है, ठीक है. जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो रिकॉर्ड रखा जाता है. जब से आईटी का यूज होना स्टार्ट हुआ है, पहले तो रखा नहीं जाता था. तो अभी ऐसा कोई ब्रीच जो है वो हुआ नहीं है. लेकिन यूएसए में क्या है कि वहाँ पर ना ये एक एक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट. तो मान के चलिए कि कहीं भी आप यदि उधर जाते हो, ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है ये. और वहाँ पर मेडिकल केयर फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो भी सेंटर प्रोवाइड करता है, तो दे हैव टू कंप्लाई विद दिस एक्ट. ठीक है, कि दे विल नॉट शेयर पर्सनल डेटा ऑफ पेशेंट, और क्या होना चाहिए कि उनका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उस डेटा को जो है ये लोग सिक्योर जो है वो रखेंगे. ठीक है, टू प्रिवेंट मिसहैंडलिंग and manipulation of health data that is applicable to all healthcare providers, health insurance carrier, etc. तो HIPAA क्या हो गया, in the US corporates have to comply with the norms of Health Insurance Portability and Accountability Act to prevent mishandling or manipulation of health data that is applicable to all healthcare provider and health insurance carriers. ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर. ठीक है, इस फिगर में आप देखिए कि क्या हो रहा है. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑपरेशन, ईज ऑफ यूज एंड कस्टमर सर्विस, कंप्लायंस एंड अदर कंट्रोल्स, एंड देन दिस इज आईटी सिक्योरिटी.
या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन बैंकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन बैंकिंग, देन बैंक हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन दीज थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, ease of use and customer service, organization goals and operation, compliance and other controls. ओके, इस तीनों में बैलेंस बनाते हुए जो है हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना होगा. आप जो है वो कस्टमर ईज ऑफ यूज एंड कस्टमर सर्विस को तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. कंप्लाइंस वाला जो चीज़ है, लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, यू कांट इग्नोर द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड यू विल हैव टू मेक श्योर फॉर द बेटर कस्टमर सर्विस. And you will have to also look into your organization goals and operation. So you will have to make balance among these three, and then we'll have to ensure information security in banking. Okay, so organization has always to strike a reasonable balance between ease of use and other parameter like compliance and other control, ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑपरेशंस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्रेट एंड अटैक्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. थ्रेट्स और अटैक्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. देखिए क्या है, बस एक बार इसे हम विल जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्रेट्स. Threat is possibly possible security risk that might exploit the vulnerability of system or asset. The origin of the threat may be accidental, environmental, human negligence or human failure. An attack, on the other hand, is the actual act of exploiting the information security system's weakness. तो threat क्या हुआ? Threat is just a possibility, a probability कि something can happen. ठीक है, तो threat is a possible security risk that might exploit the vulnerability of system or asset. And the origin of the threat may be accidental, human negligence, human failure, etc. So threat is a possibility of security risk that might exploit the vulnerability of system. But attack क्या है? तो actual act of exploiting information system security systems weakness. attack क्या है कि आपके में attack मतलब क्या कि आपका जो भी vulnerability था सिस्टम में उसका यूज करके जो है वो अटैकर जो है वो एक्सप्लॉइट कर चुका है आपके सिस्टम को उस vulnerability का यूज करके. बट थ्रेट क्या है? ये प्रोबेबल कंडीशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है. बट अटैक है एक्चुअल, मतलब आपका जो है वो हो चुका है, प्रॉब्लम तो हो चुका है. ठीक है, द एक्चुअल एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स वीकनेस. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी क्या है हमारा, वल्नरेबिलिटी क्या है, a hole in the application which can be a flaw or a bug or other form of susceptibility which allows an attacker to cause harm to the system or the information asset. Vulnerability is bugs in the system, untested software, weak hardware, weak controls in the system. देखिए वल्नरेबिलिटी मतलब यही हुआ कि हम ना उसे एक वे दे रहे हैं सिस्टम में इन करने का. ठीक है, या वी कैन से दैट कि वल्नरेबिलिटी इज अ वे टू इंटर द सिस्टम. ओके, क्या है कि ये जो है वल्नरेबिलिटी क्या है कि होल इन द एप्लीकेशन विच कैन बी फ्लॉ और अ बग और अदर फॉर्म ऑफ सस्पेक्टेबिलिटी विच अलाउज एन अटैकर टू कॉज हार्म टू द सिस्टम और द इंफॉर्मेशन एसेट. ठीक है, ये है हमारा वल्नरेबिलिटी. नेक्स्ट क्या है, रिस्क. रिस्क क्या है, देखिए रिस्क इज सेड टू बी मटेरियलाइज व्हेन अ थ्रेट मीट्स अ वल्नरेबिलिटी एंड देयर इज एन इम्पैक्ट. रिस्क क्या है, रिस्क इज सेड टू बी मटेरियलाइज मतलब कि रिस्क को हम मटेरियलाइज कब मानेंगे कि जब क्या होगा कि थ्रेट जो है मीट्स वल्नरेबिलिटी एंड देयर इज एन इम्पैक्ट. मतलब थ्रेट जो है वल्नरेबिलिटी से मीट करता है और उसका कुछ रिजल्ट होता है. ठीक है, threat meets a vulnerability and there is a result, there is an impact, so this is called a risk.
Risk always refers to a potential or an anticipated loss or damage to the system, and it's said to occur when there is an attack or threat to the system causing an impact to it. So hence we can say risk is equal to threat, vulnerability plus impact. This is risk. Risk is threat plus vulnerability plus impact. ठीक है, ये होता है हमारा. फॉर दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट मोर थ्रेट मीन्स मोर रिस्क एंड मोर थ्रेट मतलब हो गया मोर रिस्क एंड मोर थ्रेट, बट विथ नील वल्नरेबिलिटी इट मीन्स नो रिस्क. यदि वल्नरेबिलिटी नील है तो रिस्क भी नहीं होगा. ठीक है, यदि थ्रेट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा. ठीक है, और यदि हमारा जो है वो नील वल्नरेबिलिटी है तो रिस्क भी नहीं होगा. ठीक है, अब क्या है कि देयर आर डिफरेंट साइंटिफिक फार्मूला अवेलेबल फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑफ द पॉपुलर फार्मूला इज रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई डैमेज कंट्रोल. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 1 to 10 स्केल में कुछ इसका वैल्यू दिया रहेगा, डैमेज कंट्रोल कुछ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा. जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 10 है, डैमेज कंट्रोल 1 है, देन रिस्क इज 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिस्क एनालिसिस एंड व्हाट इज रिस्क मिटिगेशन. सबसे पहले रिस्क एनालिसिस क्या है, तो रिस्क एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ वेरियस थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज एंड इम्पैक्ट and the resultant risk. It is a process of identification of what can be prevented and what should be prevented, and analysis of various vulnerabilities and identification of what can be eliminated and what cost. आप एक बार यहाँ से यहाँ एक बार देखिए, रिस्क एनालिसिस क्या है. रिस्क एनालिसिस मतलब यही ना कि रिस्क को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और यदि रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, और रिस्क को जो है एलिमिनेट कैसे करेंगे. सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड, व्हाट शुड बी प्रिवेंटेड, एनालिसिस ऑफ वेरियस वल्नरेबिलिटीज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट कैन बी एलिमिनेटेड. ठीक है, रिस्क एनालिसिस मतलब क्या कि ओवर ऑफ मैनेजिंग ऑफ रिस्क. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई रिस्क, सेकंड वन इज हाउ विल यू प्रिवेंट दैट रिस्क, थर्ड वन इज यू विल हैव टू एनालाइज द वेरियस वल्नरेबिलिटीज, एंड फोर्थ वन इज हाउ कैन यू एलिमिनेट दैट रिस्क. एंड रिस्क मिटिगेशन क्या है, रिस्क मिटिगेशन क्या है, task of mitigating risk and reducing the potentiality of threats or attacks to happen or eliminating the weakness. Risk mitigation is a strategy to prepare for and lessen the effects of threats. Risk mitigation means that the strategy to prepare for. ठीक है, रिस्क मिटिगेशन मतलब क्या कि रिस्क तो होना ही है, उसको कैसे कम कर सकते हैं. ठीक है ना, तो रिस्क मिटिगेशन क्या हो गया, इज ए स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर एंड लेसन द इफेक्ट ऑफ थ्रेट फेस्ड बाय अ बिजनेस. उसको कम कैसे कर सकते हैं. रिस्क मिटिगेशन मतलब हुआ ऐसा स्ट्रैटेजी कि हम उसे, रिस्क तो होना ही है, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज रेसिडुअल रिस्क इन सिक्योरिटी. रेसिडुअल रिस्क जो है वो सिक्योरिटी में क्या है. रेसिडुअल रिस्क मतलब कि is the risk that remains after an organization has implemented all the security controls, policies and procedures which it believes to be appropriate. रिस्क, रेसिडुअल रिस्क मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है tries their best and ensured all kind of controls, policies and procedure, but still it fears that there is a risk. Okay, so this is residual risk. So residual risk is the risk that remains after an organization has implemented all the security controls, policies and procedures which it believes to be appropriate. ठीक है, कि रिस्क जो है रहता है उसके बाद एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इम्प्लीमेंटेड, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा कुछ कर चुका है, उसके बाद भी यदि कुछ रिस्क बचा है तो दैट इज रेसिडुअल रिस्क. ठीक है, रेसिडुअल रिस्क और एक एग्जांपल है कैन अफेक्ट आवर बिजनेस इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स. बिल्कुल सही है.
यहाँ पर कुछ और टॉपिक था जब मैं बुक देख रहा था, IBF का जो बुक है अपना, उसमें जैसे रिस्क एपेटाइट या रिस्क एलिमिनेट। रिस्क एपेटाइट से आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग ना जैसे इन्वेस्टमेंट में करते हैं ना कि आपका कितना एपेटाइट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना रिस्क को बियर कर सकता है, ठीक है। तो वहां तक हम जाते हैं रिस्क रिवार्ड के लिए, ठीक है। रिस्क रिवार्ड तो लेना ही होता है, जितना रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड भी होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है जब हम IS सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिस्क एपेटाइट ये नहीं है, ठीक है। रिस्क एपेटाइट का यहाँ कोई मतलब नहीं है कि, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन लूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो रिस्क एपेटाइट यहाँ पर जो है हमारा दिया हुआ है, आप यदि बुक देखेंगे तो, ठीक है। ठीक, रिस्क को हम पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। व्हाट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन प्रिवेंट एंड वी कैन ओनली मिटिगेट रिस्क। तो दैट इज अ रिस्क एलिमिनेशन। रिस्क एलिमिनेशन कुछ नहीं होता है कि हम पूरा 100% तो रिस्क को कभी हटा नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो भी हम लोग देख रहे थे, मैनेज में क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई के बाद जो है जो भी वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है, उसको हटाएंगे, उसको दूर करेंगे एंड एट द एंड वी विल मिटिगेट दैट रिस्क। उसके बाद भी कुछ होता है तो हम मिटिगेट करेंगे। तो हमारा जो ये यूनिट 3 है, तो यूनिट 3 में यही है, ठीक है। तो once I'll complete all the units of information security, then we will start covering objective questions, ठीक है, that will be asked in your examination, ठीक है। थैंक्स। और you can also download our app इन प्ले स्टोर, वहाँ जा करके आप जो है वो ऐप गिकी बैंकर के नाम से, और ये सारा लेक्चर आपको वहाँ भी मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मोबाइल में आप देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर आवर यूट्यूब लिंक्स। एंड आई विल से कि आप तभी करें व्हेन यू थिंक दैट कि ये सही है करना, ठीक है, आपको सही लग रहा है तभी आप इसे शेयर करें, ठीक है। तो आई विल से अगेन थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक्स अगेन।